Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to discuss English Literature paper ICSE class 10 given by KISA. Now what is KISA? Many viewers ask me in comment section that ma'am what is KISA? KISA is Karnataka ICSE School Association जिसमें कर्नाटका के सारे ICSE स्कूल मिलकर कलेक्टिवली एक प्री बोर्ड पेपर तैयार करते हैं जो सारे स्कूल्स में एक ही टाइम पे लिया जाता है जो कि अभी करंटली चल रहा है। आज उन्होंने लिटरेचर पेपर लिया है। Now I am going to discuss section A. It means MCQ with you from this paper. First is when Brutus says, Cassius, be constant. Publius Lena speaks not of our purposes. For look, he smiles and Caesar doth not change. What is he doing? क्या करना चाहता है वो ऐसा बोल के? He is reassuring Cassius. He is instigating Cassius. He is showing his jealousy. He is showing his fear. And the correct option is A. He is reassuring Cassius. Which term does Antony use repeatedly in his speech at Caesar's funeral to make a mockery of Brutus? ये तो आपको पता है, बार बार वो क्या वर्ड यूज करता है? तो जजमेंट, फॉल्ट, ऑनरेबल, funeral. तो क्या वर्ड यूज किया? सी, ऑनरेबल ब्रूटस। ऑनरेबल ब्रूटस अगर आपने स्पीच पढ़ी है तो आप थक गए होगे ये वर्ड बार बार पढ़ के या सुन के। नेक्स्ट इज हु इज टॉर्न बाय द मॉब फॉर हिज बैड वर्सेस। सही से आंसर ना देने के पर किसके साथ इनजस्टिस हुआ था? सिना अ कॉन्स्पिरेटर, ब्रूटस अ फ्रेंड, सिसेरो अ कॉन्स्पिरेटर, सिना अ पोएट। तो असली में सिना अ पोएट। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस। एंटनी सेज अबाउट हिज नेफ्यू, ही शैल नॉट लिव, लुक विद स्पॉट आई डैम हिम। विच ट्रेट डज ही डिस्प्ले हियर? क्या अपना डिपिक्ट कर रहा है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डिपिक्ट कर रहा है ऐसा बोल के? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेथलेसनेस। Next is Cassius accuses Antony of robbing the Hybla bees. Which of the following conditions has he not left the bees? सब कुछ उसने बीज से छीन लिया लेकिन क्या नहीं? Not left the bees. तो sightless, honeyless, stingless, soundless. बाकी तो उसने बोला कि तुमने honeyless भी कर दिया, stingless भी, soundless भी। तो क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट रह गया? A, sightless. Which philosophy taught that men should bear all suffering with patience and courage? इसमें ऑप्शंस हैं एपिक्यूरियनिज्म यानी बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ एपिक्यूरस, तो वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। स्टोइसिज्म जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि वो फिलॉसफी जो बताती है, तो वो बार बार कहता है कि मैं इसमें बिलीव करता हूं लेकिन लास्ट में जो स्टेप लेता है वो जो बोलता है उसके साथ मैच तो नहीं करता है। बट ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Which of the following options contains the same figure of speech that appears in the line Wander our thoughts above the dark abyss from H.W. Longfellow's poem Haunted Houses? तो कौन सी यहाँ पर आपको दिख रही है फिगर ऑफ स्पीच? दिस इज personification. Wander our thoughts above the dark abyss. अब ये किस में आ रही है? 10,000 saw I at a glance tossing their heads in a sprightly dance. तो daffodils की लाइन ली गई है बट इसमें personification नहीं है। The storm clouds angrily gathered overhead. B option is correct. इसमें भी personification ही आ रही है। According to me this is personification. Figure of speech बिल्कुल similar लग रही है तो option B is correct in this case. Next is which of the following is not done by the mite in the poem A Considerable Speck में mite ने क्या नहीं किया? It smelled the ink किया था, it ran in fear डर गई थी, it crept with cunning आराम से चली गई थी and it flew off the page ये नहीं किया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि वो flew off the page नहीं गई थी। Ninth is collectivistic regimenting love is a belief that the needs of an individual are important, not a group. Love is delicate and tender. The needs of a group are important, not an individual. Man needs a collection of feelings. So here option C is correct. The needs of a group are important, not an individual. जिस पर poet ने इसमें irony दिखाई है इसी poem के अंदर। The great trees is an extended metaphor for किसके लिए यूज किया गया है? Giant rocks, great souls, small creatures, sterile air. तो correct option is B, great souls. After a period peace blooms, it means that same poem में किसके लिए यूज किया गया है? After a period peace blooms. Peace is a flower. Small animals recoil into silence. There is silence after trees fall. Healing follows grief. And option D is correct कि healing follows grief. मतलब when time pass और उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद भूल जाते हो और heal हो जाता है। Part number 12. Choose the option that lists the sequence of events from Stephen Leacock's short story with the photographer in the correct order.
No, he went on. I don't care for it. I like to get the hair clear back to the superficies and make out a new brow line. He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence. Is it me? I asked. Go on then with your brutal work. Take your negative or whatever it is you call it, dip it in sulfide, bromide, oxide, cowhide, anything you like. The photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled into it from behind. क्लियरली पता चल रहा है कि फोर्थ से ही स्टार्ट हो रहा है और आपका यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्लू दिया हुआ है कि ए ऑप्शन फोर्थ से स्टार्ट हो रही है। सबको पता है कि पहले फोटोग्राफ ली जाएगी उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो फोर्थ से हम हिंट लेके ए ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। तो फोर्थ सबसे पहले आएगा, देन सेकंड की उन्होंने फोटोग्राफ देखी, देन फर्स्ट की उसने कहा कि ये क्या है, और थर्ड मतलब लास्ट में कि उसने कहा जो मर्जी करो नेगेटिव भी अपने पास रखो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। In 13th, select the option that shows the correct relationship between statement 1 and 2 from Ama Etta Edo's short story The Girl Who Can। मैंने इसको आपका ड्रामेटिक वर्जन भी दिखाया हुआ है इस चैप्टर का, तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। स्टेटमेंट 1 इज yes, I have won every race I ran in for my school and I have won the cup for the best all-round junior athlete। And statement 2 is Nana is right now carrying me on her knee and crying softly, muttering that thin legs can also be useful। तो किसके लिए आया है? A is 1 is true and false, 2 is true and 1 is false, 1 is the cause for 2 and correct option is C, 1 is the cause for true। क्योंकि अब नाना बहुत खुश है, लेकिन क्यों खुश है? क्योंकि वो ऑल राउंड जूनियर एथलीट चुनी गई थी और वो जीत कर लाई है कप। नेक्स्ट इज हाउ डज विलियम स्लेटर शॉर्ट स्टोरी द एलिवेटर एंड? कैसा एंड हुआ है उसका? ऑन ए पॉजिटिव नोट, इन ए क्लिफ हैंगर, इन एन एक्सपेक्टेड मैनर, इन ए शॉकिंग मैनर, इन ए क्लिफ हैंगर। ऑप्शन बी ओपन एंडिंग है ना, हेलो मार्टिन, याद है ना आपको लास्ट डायलॉग इसका, तो मतलब उसकी ओपन एंडिंग है, तो क्लिफ हैंगर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द एटमॉस्फियर इन द शॉर्ट स्टोरी द पेडेस्ट्रियन इज स्टिफलिंग, cheerful, dark and foreboding, encouraging and option C is correct। पेडेस्ट्रियन में डार्क एंड फोरबोर्डिंग की कोई किसी के लिए कोई केयर नहीं है, डिस्टोपियन सोसाइटी दिखाई है। द थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन आर emancipation of women, patriotism, non-conformity, language a symbol of identity, education appearance versus reality। तो पूरा चैप्टर ही जो रिवॉल्व कर रहा है वो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज दी ही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो लैंग्वेज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, एजुकेशन, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विद दिस ऑल द एमसीक्यूज आर ओवर। और सेक्शन बी और सी में आपने अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, जिसमें आपने देख ही लिया कि अलग अलग सीन से उठाए गए हैं। और चैप्टर्स जो होते हैं अभी आपका, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस बुक से पेपर होने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंगली फाइनल बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आपका पोएट्री और प्रोज दोनों का फर्स्ट और लास्ट इनमें से कुछ ना कुछ तो कवर जरूर होगा। उसके अलावा सेकंड भी कवर हुआ है, फोर्थ भी कवर हुआ है और फर्स्ट भी कवर हुआ है इस पेपर में भी। तो अब आप इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि आपको फाइनल बोर्ड के लिए कौन कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आप अभी भी मेरे चैनल के मेंबर नहीं बने हैं तो अभी और लेट मत कीजिए, जल्दी से मेंबर बन जाइए, नहीं तो मैं फीस बढ़ा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।